Okay, so we are starting the third chapter, that is synthetic fiber and plastic. So in class 7th you must have studied about the fiber, in which you have studied that there is natural fiber and artificial और man-made fiber, जिसे हम लोग synthetic fiber भी कह रहे हैं. So if I ask you about the synthetic fiber, what will be the other name of synthetic fiber? The other name will be artificial, है ना, artificial और man-made fiber, है ना. Yes, sir. So in this chapter basically we will be looking at the synthetic fiber and plastic. So you are already knowing that there are some fiber that are obtained from animals, or there are some fiber that are obtained from plants. Can you name some fibers that are obtained from plant in the chat box? All of you just write down the name of the fiber that are obtained from plants. Yes, let me see that. Who have written? Yes, here. Okay, cotton, jute, flax. Sanvi Kumari. Ayush, not single answer. Yes, Sakshi Gaurav, cotton, jute, coir, flax. Okay, Satyam Kumar, Shivam. Okay, so yes, this is the answer, that is cotton, jute, coir, flax. These are the natural fiber that are obtained from plant. Just like that, wool and silk are obtained from animals. Let me know who will tell me that wool is obtained from which animal. Who will tell me? Raise your hand. Sheep. Yes, Sheep and goat. sheep and goat. Okay, and silk from? Silkworm. 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 Okay, so natural fiber can be distinguished from synthetic fiber by the way they burn. So actually if we want to differentiate between the synthetic fiber and the natural fiber, so how you can distinguish between them? You just Synthetic fiber बोलो. Synthetic fiber are manufactured. Man-made fiber, sir. Synthetic fiber and man-made fiber. नहीं, दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? अगर मैं तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े का टुकड़ा रख दूं एंड आई आस्क यू कि जस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम कि विच इज़ कॉटन, विच इज़ नायलॉन, हाउ कैन यू डू दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Synthetic fiber that obtained from plants or animal is known as natural fiber. no, Fiber that are made in no, that is not. sunlight. I am asking that if you have many clothes, many fabrics actually, and if you are told to differentiate them, which is cotton, which is silk, which is synthetic. By touching them. Okay, by the texture, one of the way, by texture देख करके भी कोई कह देगा अरे ये तो कॉटन है मुझे पता ही है, ये तो सिल्क है मुझे पता ही है, तो देख करके वो बता सकते हैं. बट दूसरा ऑप्शन है, हम उसे उसका एक फाइबर निकाल करके जला के देख सकते हैं. सो इफ़ वी बर्न द कॉटन फाइबर तो वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा और उसका स्मेल ऐसा आएगा जैसा कि हम लोग एक पेपर जला रहे हैं. बट इफ़ वी बर्न अ सिंथेटिक फाइबर, अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे तो वो ऐसा जलेगा जैसे कि हम लोग प्लास्टिक जला रहे हैं और एक वो हार्ड रेसिड्यू छोड़ जाएगा जलने के बाद भी. तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सिंपली उसे बर्न करके, जिस तरह से वो बर्न करते हैं, है ना. Yes, sir. ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर सच एज जैसे कि नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर दैट मेल्ट व्हाइल दे बर्न एंड गिव आउट अ स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक. तो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर को जब हम लोग जलाएंगे तो वो मेल्ट होंगे जब वो जलेंगे और गिव आउट स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक. जैसे प्लास्टिक जल रहा होता है तो कैसा स्मेल आता है, वैसा स्मेल आएगा. द रेसिड्यू दे लीव बिहाइंड इज़ हार्ड, और ये जो रेसिड्यू छोड़ जाएंगे वो बहुत हार्ड होगा. वैसे कोई प्लास्टिक जलाए हो? Yes, sir. सो जो भी प्लास्टिक जलाया Yes, होगा sir. तो उसमें उस प्लास्टिक को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो प्लास्टिक ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगता है, मतलब वो मेल्ट हो रहा है ना. Yes. Okay. So what you gonna learn in this chapter? You will be knowing about the natural fibers such as cotton, wool, jute, coir and flax, even synthetic fiber that is nylon, rayon,
polyester and acrylic. लिख सर एक एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे हम लोग, जैसे स्ट्रेंथ क्या होता है सिंथेटिक फाइबर का, इलास्टिसिटी कितना है, रेसिस्टेंट टू बायोलॉजिकल अटैक, एज द सिंथेटिक फाइबर आर वेरी रेसिस्टेंट टू बायोलॉजिकल अटैक, दैट मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर पे बहुत कम चांस है कि ये ख़राब कर पाएँ, बैक्टीरिया कम डिकम्पोज नहीं कर सकते उसे. एफिनिटी फॉर डाइज एंड रेसिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कालीज, अल्कालीज मीन्स बेस, मतलब एसिड और बेसिस से भी रेसिस्टेंट है, एंड इन्फ्लामेबल है या नहीं है, ये सारा कुछ हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ में देखने वाले हैं इस चैप्टर में. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड प्लास्टिक एज अ थर्मोसेट प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. सो प्लास्टिक का भी दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. Okay, now let us start. So different fabrics are made from different kind of fiber, as we know that कि अलग अलग तरह के फाइबर से अलग अलग तरह के फैब्रिक बनते हैं. As you are knowing that कि फैब्रिक क्या है, कोई बताओगे फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक का मतलब हिमांशु राज? यस हिमांशु. फैब्रिक मीन्स द क्लोथ. फैब्रिक मीन्स क्या? क्लोथ. तो जो कपड़े हमने पहने हुए हैं वही तो फैब्रिक है. और ये फैब्रिक जो है बना हुआ है धागा का. अगर क्लोथ को करीब से देखो तो इसके अंदर थ्रेड्स हैं. सो इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर, है ना? यस तो सर. डिफरेंट फैब्रिक Yes, जो है sir. डिफरेंट फाइबर्स के बने होते हैं. जैसे कॉटन क्लोथ इज़ मेड अप ऑफ cotton fiber. Like that, nylon fabric is made up of nylon fiber and wool is made up of woolen fiber. All these fibers are very different from each other. तो सभी फाइबर्स बहुत अलग अलग होते हैं एक दूसरे से. जैसे अगर हम बात करें तो फाइबर आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के फाइबर होंगे, जैसे नेचुरल फाइबर और मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर. तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर जो नेचुरली मिलते हैं हमें, और मैनमेड जो हम लोग बनाते हैं. ओके, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट मी आस्क वन क्वेश्चन कि फैब्रिक तो हमें पता है, फैब्रिक जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स को फैब्रिक्स कहते हैं. तो ये फैब्रिक बने होते हैं फाइबर के, ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अ हैंडकरचीफ, ये मेरा हैंडकरचीफ है और ये कॉटन फैब्रिक का बना हुआ है. तो कॉटन फैब्रिक है मतलब इसमें थ्रेड होंगे, बहुत सारे कॉटन के होंगे. यस सर. यस सर. ऐसे होंगे हॉरिजॉन्टल और इधर से भी होंगे वर्टिकल. इसमें से एक थ्रेड निकाल लें, ये वाला, ये थ्रेड निकाल लेते हैं. तो इस थ्रेड को, एक सिंगल थ्रेड को क्या बोलेंगे हम लोग? फाइबर बोलेंगे. बहुत बढ़िया. तो इस फाइबर के ही तो ये फैब्रिक बना हुआ है ना, यही थ्रेड से ही तो मिल करके ये रुमाल बना हुआ है, ठीक है. यस सर. ओके, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ फाइबर. फाइबर जो है दो तरह के हैं, क्या? एक तो नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक, जिसे मैनमेड भी कहते हैं. सो नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि सिल्क, कॉटन, सिल्क, लिनेन, ऊल, कॉयर आर नेचुरल फाइबर. एंड नायलॉन, रायन, पॉलिस्टर आर सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. They are made in factories using chemical process. Now I have question. You have to raise your hand. Who will define natural fiber with example? Raise your hand. Okay. Ashish Kumar. they obtained from plant and animal is called natural fiber. Wool. Give example. Wool. Wool. बस, चलो ठीक है. नेक्स्ट आर्या ऋषि कुमार. Yes, sir. The fibers which are obtained from plants and animals is called natural fibers, Exactly. such as cotton, silk, linen, wool, and coir. Very nice. Very nicely said that the fiber that are obtained from plants and animals, they are the natural fiber. For example, cotton, silk, linen, wool, and coir are the natural fiber. Okay. Satyam Kumar Singh. Satyam, Yes, sir. Satyam, you define the synthetic fiber with example. Nylon, rayon,
are some of these synthetic fiber. They are made in factories using chemical process. Yes, I see some of the student has written in the chat box also. They defined that the natural fiber. Okay, I was asking about the synthetic fiber. Raise your hand. Who will define synthetic? Yes, other thing. The fibers that are made with chemical substances are called synthetic fibers, such as nylon. Okay, you can say like that also. The fiber which is made up of chemicals and that is made in factories such as nylon, rayon and polyester are some of the example of synthetic fiber. Okay, so tire. Okay, mute your call now. Okay, next is tire of a racing bike, the clothes worn by the rider and the shoes and the helmet are all made specially designed synthetic material. तो ये राइडर को देख लो, इसका जूता, इसका हेलमेट, इसका ड्रेस. सर क्लाइंबिंग रोप भी तो होगा नायलॉन. हाँ. Do not unmute your call in between. As you know that कि इस रेसिंग बाइक का ये टायर, ये हेलमेट, ये इनका ड्रेस, इसका जूता सब जो है वो सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ है ना. सम फैब्रिक्स आर मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर डिफरेंट फाइबर्स. तो कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक फाइबर्स को मिलाकर के बनाए जाते हैं. जैसे कि मान लो कि नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है और ऊल फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर है. तो सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को मिला दिए, उसको मिला करके एक नया फैब्रिक बनाए जिसमें ऊल का प्रॉपर्टी रहेगा. ऊल का प्रॉपर्टी क्या है, हमें वार्म रखने का. और नायलॉन का प्रॉपर्टी क्या है कि वो ड्यूरेबल रहेगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, है ना. यस सर. ओके. सर नायलॉन का धागा बहुत मजबूत होता है. हाँ, यू आर करेक्ट. ओके, नाउ हेयर क्वेश्चन अराइज कि सर आपने तो कहा कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर. ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि फाइबर जो भी क्लोथ है उसमें धागा होता है एंड दैट धागा इज़ मेड अप ऑफ फाइबर. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये फाइबर्स किसके बने होते हैं, है ना. ये फाइबर जो है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा. डू नॉट अनम्यूट योर कॉल. अगर मैं कहूँगा तभी अनम्यूट करना है. तो फाइबर्स आर केमिकल सब्सटेंस. फाइबर्स क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है दैट आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जिसे पॉलीमर्स कहते हैं. तो फाइबर्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है, तो पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर इज़ अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल. तो पॉलीमर बहुत लंबा मॉलिक्यूल कह रहे हैं होता है एंड इट इज़ लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स. ये स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह होता है. स्ट्रिंग ऑफ बीड्स मतलब जैसे अगर कोई माला आपने देखा होगा तो वो ऐसे करके गोल गोल सा है सारा, एक दूसरे के करीब करीब होता है ना, ऐसे करके स्ट्रिंग ऑफ बीड्स. ठीक है, इस तरह से. So in a string of beads, many beads are joined together to form a long string, है ना. सारे beads join होकर के long string बनाए हैं. So similarly thousands of small molecules join to form a polymer. तो polymer बनाने के लिए thousands of small molecules join होकर के polymer बनते हैं. जैसे कि ये देखो मोनोमर है, सिंगल मॉलिक्यूल. ये सभी मॉलिक्यूल जिसे मोनोमर कह रहे हैं, मतलब ये मान लो मोनोमर है, सिंगल मोनोमर, ये सारे सिंगल मोनोमर सभी ज्वाइन होकर के पॉलीमर बनेंगे. तो पॉलीमर बनने के लिए ये एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, फिर तीसरा, फिर चौथा, सारे मोनोमर एक दूसरे से ज्वाइन होकर के ही पॉलीमर बने हैं ना. पॉली का मतलब ही है बहुत सारा, मैनी. ठीक है, और मर यहाँ पे सिंगल यूनिट, मर्स. मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स मैनी. तो मोनोमर बहुत सारे सिंगल मर्स मिल करके पॉलीमर बनेंगे, है ना. से यस या नो. यस सर. Yes, sir. सो हेयर यू सी दैट द मोनोमर जो सिंगल यूनिट है ये सभी कंबाइन होकर के पॉलीमर बन रहे हैं, है ना. पॉलीमर क्या है कि पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल है, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह, है ना. सो उसी तरह थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइन टू फॉर्म अ पॉलीमर. Sir, you are audible. You just check your network, Mamta, and do not disturb the class. I already told you that this class is recorded for uploading in the Google Classroom. Still you are doing that. Okay, who will define polymer here? Raise your hand. Okay, Sakshi Gaurav.
Yes, sir. Yes, define polymer. Fibers are chemical substances that are made up of molecules called polymers. तो फाइबर्स, अगर मैं पूछूंगा फाइबर्स क्या है तो उसमें आप बता सकते हो कि फाइबर्स जो है केमिकल सब्सटेंस हैं जो बने हैं पॉलीमर्स के। अगर मैं पॉलीमर्स के बारे में पूछता हूँ तो पॉलीमर्स के बारे में बताना होगा ना, पॉलीमर्स क्या है। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द कंप्लीट आंसर। प्रीसा राज। Yes, sir. यस, व्हाट इज पॉलीमर? Synthetic fiber are made up of नहीं। molecules. It's called. प्रीसा, आई एम आस्किंग Sir, अबाउट may I? पॉलीमर। यस, आदर्श सिंह। Sir, a polymer is a substance or material consist of very large molecules. Yes, you can say that the polymers is a very large molecule. It is like a string of beads. It is a string. In a string of beads, many beads are joined together to form a long string. Similarly, thousands of small molecules join to form a polymer. Okay, again I would like to ask this polymer to Sir, may Ansika. I? Do not unmute your call. Sir. Do not unmute Yes, your call. sir. Ansika. Fiber are chemical substance that are made of molecules. Polymer is a very large molecule. It is like a string of beads. Akanksha. Akanksha. Yes, Akanksha, define polymer. If you don't have hand raising option, so I am asking you to define. Akanksha, define polymer. No, she is not listening. Rudresh Kumar. Yes, sir. Yes, define polymer. Sir, a polymer is a long chain of molecules that is formed from small molecules together. Yes, very good. बहुत बढ़िया। ये भी कह सकते हैं हम कि it is a long large molecule that is made up of small molecule together. बहुत बढ़िया। Okay. Sir, may I? Yes, Ashish. But you should not unmute your call. You can ask me in the chat box. You can raise your hand. Do not unmute your call and ask, sir, may I? Yes, Ashish, बोलो फिर भी। A small unit made together from a large unit is called polymer. Yes, वो भी हो सकता है कि small molecules combine to form a large unit that is called polymer. Okay, so smaller basic molecules of a polymer. तो polymer में जो smaller basic molecule है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? Cellulose. नहीं, monomer. Do not unmute your call. प्रियांशु वर्मा. Yes, sir. प्रियांशु वर्मा, define monomer. The smaller basic molecules in a polymer of a fiber are called monomers. Yes. So all kinds of fibers are made up of certain type of polymer. तो जितने भी तरह के फाइबर हैं वो अलग अलग तरह के पॉलीमर के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल फाइबर, अगर नेचुरल फाइबर की बात करें तो कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, कॉयर एंड फ्लैक्स आर नेचुरल फाइबर. सो नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो पॉलीमर. तो नेचुरल फाइबर भी पॉलीमर है. जैसे कि अगर हम बात करें कॉटन फाइबर इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज. तो कॉटन फाइबर में जो पॉलीमर है वो पॉलीमर किसका बना हुआ है? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ कि नेचुरल फाइबर में जो पॉलीमर है, नेचुरल फाइबर जो पॉलीमर का बना हुआ है वो पॉलीमर किसका बना हुआ है? सेलुलोज का. यस, वेरी गुड. अब ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज मॉलिक्यूल जो है, जो पॉलीमर है, अब मान लो ये पॉलीमर है, सेलुलोज है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोनोमर, है ना. ये पॉलीमर तो मोनोमर का बना हुआ है. तो इस सेलुलोज में जो मोनोमर है वो मोनोमर क्या है, कोई बता पाओगे? ये जो सेलुलोज जो पॉलीमर है कॉटन फाइबर का, ये बना हुआ है मोनोमर का. तो सेलुलोज का मोनोमर यूनिट क्या कहलाएगा? हाँ, यस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यस, अनामिका राज. यस, ममता, दैट इज ग्लूकोज यूनिट.
तो ग्लूकोज यूनिट जो है वो मोनोमर है सेलुलोज का। मतलब कॉटन फाइबर की अगर हम बात करें, जो मैं अपना हैंडकरचीफ की बात हैंकी की बात कर रहा था, हैंडकरचीफ, इसमें से एक धागा निकाल लिया हमने। ये धागा जो है, ये थ्रेड अगर जो है वो फाइबर अगर है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना हुआ है। और ये सेलुलोज का अगर ये पॉलीमर है, तो ये पॉलीमर में सिंगल यूनिट जो मोनोमर है, ये सिंगल मोनोमर यूनिट क्या है? ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर के सेलुलोज बनेंगे, है ना? समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now my question is, what is cellulose? Raise your hand. Answer. Who will give the answer? What is cellulose? Raise your hand. Okay, and define. Yes, Mamta. Yes, sir. Define cellulose. Mamta, I am waiting for you. Mamta, my presentation is visible. Sir, may I? Yes, sir. So define cellulose, na? Sir, may I? Do not unmute your call in between. Already told you that. म्यूट करो अपना कॉल काजल। देखो सन्वी कुमारी लिख भी चुकी है चैट बॉक्स में। ओके, काजल शर्मा। काजल, डिफाइन सेलुलोज। मैं Kajal, mute your call. Kajal, now mute your call. I don't have that much time. Kajal, now please mute your call.